गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे विल डिस्कस अबाउट द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन digestive system in human. Already we have discussed in detail in previous lecture video, but today I have tried to discuss this along with the question answer. So we will discuss about the digestive system and process of digestion, and we will discuss also some question which are very much essential for NTSC examination, your board examination, and for 11 student in NEET also. So you have to see carefully and learn about the question answer also. So especially about the digestive system in human, you know, human being is a holozoic social animal. Holozoic social animal means human being takes food in semi-solid and solid form. In the food, carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral. So especially there is the urgent need of digestion of carbohydrate, protein, fat. Vitamin, mineral, it can be absorbed through the blood capillary of villi, but the carbohydrate, protein and fat, they are the complex food molecule. A macromolecules हैं, macrobiomolecules हैं, so they cannot be get absorbed through the blood capillary. Therefore, it should be digested properly, converted into simpler form which can be absorbed inside the blood capillary and the lacteals of the villi. तो सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे. क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? द डाइजेस्टिव सिस्टम includes the alimentary canal which extend from mouth to anus. Digestive system is also associated with some digestive glands. It plays very important role in digestion of the food material. So here the digestive system begins from mouth. In the mouth there is the buccal cavity. In the buccal cavity, here the three pairs of salivary gland, the parotid gland, sublingual and submaxillary gland, it secretes saliva, and just buccal cavity open into pharynx. Pharynx here communicate with the two opening. One opening is the windpipe, the trachea, and the other is the oesophagus. Oesophagus is food pipe. Oesophagus extend through neck region, enters into chest region, and then passing through the diaphragm, it enters into the stomach. अब स्टमक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ देख सकते हैं कि माउथ से यहाँ फायरिंग्स से ओइसोफेगस फूड पाइप, और फूड पाइप सीधे स्टमक से कनेक्ट हो गया, अटैच हो गया, स्टमक से कनेक्ट हो गया. और यह स्टमक इज बैग लाइक स्ट्रक्चर. इसमें थ्री पार्ट होते हैं. जहाँ यह ओइसोफेगस मीट करता है, ओपन होता है स्टमक में, दैट इज कार्डियक, इसके बाद फंडस और यहाँ पाइलोरस. तीन पार्ट होते हैं स्टमक में. और यह स्टमक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड विथ स्टमक वॉल. Here inner lining of the stomach contain mucosa. Mucosa consists of the gastric gland, or gastric gland secretes gastric juice for digestion of food. अब stomach is communicated with the first part of the small intestine, that is duodenum, then the jejunum, then small intestine, the part ileum. Ileum is the largest and part of the small intestine. It contains internally large number of villi. Here in the small intestine final digestion of food occurs. Small intestine में final digestion food होता है और absorption भी होता है. और यहाँ the liver is the largest gland in our body. यहाँ liver secretes bile juice, and bile juice get stored in gallbladder through the common bile duct, and the pancreas यहाँ है. pancreas से pancreatic duct communicate to form hepatopancreatic duct and open into duodenum. इसको हम डिटेल में अभी आगे वाले पार्ट में देखेंगे. और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड विद द सीकम, एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द सीकम, दैट इज वेरी मच वर्म लाइक स्ट्रक्चर. इसको कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. नाउ द सीकम कम्युनिकेटेड विद द लार्ज इंटेस्टाइन then form bag like structure rectum, and rectum open through the small opening, that is called as anus. तो यहाँ पूरा एलिमेंट्री कैनाल आप देख रहे हैं. बकल कैविटी में अपर एंड लोअर जा में टीथ हैं. टीथ 16 इन एडल्ट पर्सन, 16 अप 16 डाउन. और
यह जो है पूरा डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में डाइजेस्टेड मटेरियल को मदद करते हैं। इतना ही नहीं, अनडाइजेस्टेड रिमेन्स को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स into simpler and smaller form, so it can be easily get absorbed into blood capillary, villi of villi and lacteals of villi, and undigested remains removed outside the body time to time. अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम आपने देखा, हम थोड़ा सा एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ आप देखिए, यहाँ यह लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर से तमाम ये डक्ट्स निकल रही हैं और यह डक्ट्स आकर के देखिए गॉल ब्लैडर से मिला हुआ है, इसको सिस्टिक डक्ट कहेंगे, और बाकी जो लीवर से डक्ट निकले उसको कॉमन हिपैटिक डक्ट कहेंगे। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड दिस सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर दैट फ्रॉम कॉमन बाइल डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर के हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, एंड द हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू डिओडेनम एंड द ओपनिंग इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब यहाँ गॉल ब्लैडर द ओनली ब्लैडर विच स्टोर्स बाइल जूस, लीवर सेक्रेट्स बाइल जूस। बच्चों, बाइल जूस जो है इट इज द एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ लीवर, ये कोई एंजाइम नहीं है। बाइल जूस एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ लीवर, इट कंटेन बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, बाइल रूबिन, बाइल बर्डिन, and it contains the sodium bicarbonate. It is alkaline in nature, and liver secrete it, and which is stored in gallbladder, and through the cystic duct comes into the hepatopancreatic, this common bile duct, and through common bile duct where communicates the pancreatic duct, through hepatopancreatic duct it is discharged into duodenum. तो अब यहाँ स्टमक आप देख सकते हैं, स्टमक इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक है, और इसके अंदर में इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लाइक ऑक्जेंटिक सेल, जाइमोजन सेल एंड म्यूकस सेल। म्यूकस सेल स्पेशली सेक्रेट्स म्यूकस। म्यूकस सेल म्यूकस सेक्रेट करेगा जो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ऑक्जेंटिक सेल सेक्रेट्स या सीएल to maintain acidic medium for digestion of food in stomach, and zymogen cell secretes pepsinogen and prorenin. प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, सीएल से मिलकर के एक्टिव हो जाते हैं। पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाएगा, प्रोरेनिन रेनिन में बदल जाएगा। पेप्सिन यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। प्रोटीन जो फूड में है वह पेप्टोन और पेप्टाइड प्रोटीओजन में बदल जाएगा, प्रोटीओज पेप्टोन एंड पेप्टाइड्स में बदल जाएंगे, और बाकी प्रोरेनिन रेनिन में बदलकर कर्लिंग ऑफ मिल्क एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क। हम यहाँ पे डाइजेशन को बकल कैविटी से शुरू करते हैं। बकल कैविटी में जैसे फूड आया, मैस्टिकेट हुआ टीथ के द्वारा, और सेलिवरी ग्लैंड से सेलाइवा आया, मिक्स होकर के काइम में बदल गया। तो सेलिवरी ग्लैंड जो सेलिवरी एमाइलेज आया, सेलिवरी एमाइलिन में क्या है बच्चों? टाइलिन। सेलिवरी एमाइलेज क्या है? टाइलिन है। सेलिवरी ग्लैंड से जो निकला टाइलिन डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माइल्टोज। जैसे स्टार्च हम खाते हैं वो मीठा नहीं लगेगा शुरू में, लेकिन जब एंजाइम का एक्शन होगा धीरे 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 वो माइल्टोज में बदल जाएगा, तब मीठा लगेगा। आप कभी चावल या रोटी का पीस मुख में लें, देखें वो मीठा उतना नहीं लगेगा। जब उसको 30 बार 32 बार चबाएंगे तो सलाइवा से पूरा मिक्स हो जाएगा। तो जो सेलिवरी एमाइलेज है वह जो है डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को माइल्टोज में। जैसे माइल्टोज में बदलेगा आपको स्वीटनेस फील होगा, इसका मतलब केमिकल डाइजेशन हो गया। तो फिजिकल डाइजेशन क्या हुआ? द लार्जर फूड मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर स्मॉलर पीस, काइम में बदल गया। लेकिन केमिकल डाइजेशन क्या हुआ? सेलिवरी एमाइलेज में टाइलिन डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माइल्टोज। तो बकल कैविटी में पीएच 6.8 होता है। कंपटीशन के पॉइंट अभी से भी इंपॉर्टेंट है। 6.8 पीएच एसिडिक है, और यहाँ पे स्लाइट एसिडिक कह सकते हैं। 6.8 पीएच है तो, और यहाँ काइम के रूप में भोजन जो है स्वालोड हो गया। स्वालोड होकर के यहाँ आ गया थ्रो फेरिंग्स इनटू ईसोफेगस। यहाँ जो ग्लाटिस है, ट्रेकिया का जो ओपनिंग, वह एक प्रकार के ईपीग्लॉटिस फ्लैप से कवर्ड होता है। तो वो ग्लॉटिस हमेशा ओपन है जब हम बात करते हैं या चलते हैं फिरते हो भी कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन जिस समय भोजन निकलेंगे वो ईपीग्लॉटिस ग्लाटिस को बंद कर देगा ताकि उस समय भोजन ईसोफेगस में आ जाए। अगर हम
निगलते समय भोजन बात करते हैं या हंसते हैं तो फिर यहाँ ये इपिग्लॉटिस कंफ्यूज होगा कि इसको बंद करें या खोलें, तो फिर कुछ पार्ट के लिए आते हैं, फिर वहीं स्नीजिंग कफिंग शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जब हम भोजन निगलते हैं उस समय हम शांतिपूर्वक भोजन को ही निगलना है, उस समय बात नहीं करना चाहिए, ताकि यह भोजन निगलते समय एटलीस्ट जो ओपनिंग है ग्लाटिस है वो इपिग्लॉटिस से क्लोज है, ताकि भोजन आराम से फैरिंग से होते हुए ओइसोफेगस में आए। ओइसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, इससे ये भी मस्कुलर है फूड पाइप, और इससे होकर के स्टमक में आ गया भोजन। और यहाँ आने के बाद चर्निंग होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है स्टमक वाल का, तो यहाँ चर्निंग हो गई, यहाँ भी पेस्ट में बदलेगा। इसके साथ साथ गैस्ट्रिक जूस जो आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस आएगा कैसे, जैसे भोजन यहाँ आया तो यहाँ पाइलोरिक म्यूकस से गैस्ट्रिन हार्मोन निकलेगा, वो स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड को, गैस्ट्रिक जूस आ गया तो यहाँ म्यूकस सेल से म्यूकस सेक्रीट हुआ। इसके बाद HCl आया पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल से, और जाइमोजन सेल सेक्रीट पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। तो HCl कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन एंड प्रोरेनिन इनटू रेनिन। अब पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलकर एक्टिव हो गया, अब इट विल डाइजेस्ट प्रोटीन into peptones and peptides, and this renin helps in curdling of milk and digestion of milk protein. After this digestion of protein, here food will pass through the pyloric valve into duodenum. Here in some book it is written like slight lipase is also secreted from the gastric gland. Then lipase digests slightly the fat into fatty acids in glycerol. Now here digestion takes place in acidic medium. यहाँ बच्चों प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम क्यों इनएक्टिव फार्म में, प्रो इंजाइम फार्म में क्यों निकलते हैं, क्वेश्चन बार बार पूछता है। पेप्सिनोजन के रूप में निकलेगा, क्योंकि अगर पेप्सिन के रूप में निकला तो प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम, हमारी वाल भी प्रोटीन की बनी है तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, और जहां बनता है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, प्रो इंजाइम फॉर्म पेप्सिनोजन के रूप में, और जब आ जाएगा स्टमक में तब वो HCl से मिलकर पेप्सिन में बदलेगा। उस समय तो म्यूकस भी लाइनिंग पे रहेगा, इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द HCl। तो इस तरह से इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे भोजन आ गया कहाँ, डिओडेनम में आ गया, देन from the liver means gallbladder, from liver the bile juice is secreted, stored in gallbladder. So through the cystic duct comes into hepatic duct, this common bile duct, and the common bile duct bile juice from the gallbladder through the cystic duct comes into common bile duct, and the pancreatic juice through pancreatic duct it comes into duodenum through hepatopancreatic duct, and in duodenum digestion takes place in alkaline medium। क्यों? क्योंकि बाइल जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट है, पैंक्रियाटिक जूस में भी सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये दोनों मिलकर के HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं और यहाँ एल्कलाइन मीडियम हो गया। अब पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स सेवरल एंजाइम लाइक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लिएज, pancreatic amylase, lipase, different type of enzymes are present here. तो pancreatic amylase digest starch into maltose, trypsinogen get converted into trypsin in the presence of enterokinase, and procarboxypeptidase also get converted to carboxypeptidase, and it digests protein and peptides into dipeptide. Nuclease digest nucleic acid into nucleotides and nucleosides. Now the lipase here digest fat, but before digestion lipase in the presence of bile juice get emulsified. It means bile juice plays important role in maintaining alkaline medium as well as emulsification of fat, then digestion of fat takes place. तो बाइल जूस बहुत ज़रूरी है बच्चों, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए, एल्केलाइन मीडियम मेंटेन करने के लिए, और फिर फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने के लिए, ताकि उस पर आसानी से लाइपेज एंजाइम एक्ट कर सके और फैट को फैटी एसिड के साथ। तो लाइपेज कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल।
Ultimately, the food passes through from duodenum through jejunum into ileum. In ileum, intestinal glands are present in inner lining. Intestinal gland secretes intestinal juice. Intestinal juice also contain several enzymes like maltase digest एंजाइम सबस्ट्रेट के नाम के आगे एज लगाने से होगा। तो मैल्टोज तो आया वहाँ से स्टार्च डाइजेस्ट होकर मैल्टोज में बदला था। तो मैल्टोज को पचाने वाला एंजाइम कौन सा यहाँ होगा? मैल्टेज डाइजेस्ट मैल्टोज इनटू ग्लूकोज। अब मैल्टोज डाइसैकेराइड है तो 2 ग्लूकोज देगा। सुक्रेज एंजाइम डाइजेस्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। लैक्टेज एंजाइम डाइजेस्ट लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। After that, the dipeptides which are secreted from intestinal gland, and this dipeptide digest dipeptide into amino acid. Then nucleosidase and nucleotides, this digest nucleosides and nucleotides into base, pentose sugar and phosphate. Ultimately, in the intestine, small intestine, there are the large number of villi are finger-like projection which are highly supplied with blood capillaries. इसमें blood capillaries खूब होंगी, lacteals होंगे, then amino acid, glucose, water, vitamin, mineral get absorbed into blood capillaries. Fatty acid and glycerol get converted into chylomicrons, means protein coating occurs, then absorbed into lacteals. Ultimately, it also become the part of blood circulation. From the alimentary canal, all the digested nutrients get absorbed and through hepatic portal vein comes into liver, and from liver it is distributed through blood circulation all over the body for use. And here the undigested remains from small intestine passes into cecum, then large intestine, then comes into rectum. In large intestine, some amount of water, minerals get absorbed. In large intestine, the some amount of water, mineral get absorbed. Then in rectum, it is get stored for some times and time to time removed outside the body during defecation. तो ये तो रहा बच्चों जनरल डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में भी मैंने बता दिया है, वहाँ भी लिंक में जाके आप उसको देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। इन विच मीडियम डाइजेशन अकर्स इन स्टमक? मैंने बोला था गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन ऑक्जेंटिक सेल विच सेक्रेट्स HCl। तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिड है। तो स्टमक में किस मीडियम में डाइजेशन होगा? बिल्कुल क्लियर हो गया, एसिडिक मीडियम में डाइजेशन होगा। यह एल्केलाइन है, के यहाँ छुटा है एल्केलाइन, तो एल्केलाइन मीडियम में नहीं होगा, न्यूट्रल में नहीं होगा। किस मीडियम में होगा डाइजेशन बच्चों? एसिडिक मीडियम में होगा डाइजेशन। किसमें? स्टमक में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई? विलाई प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अभी हमने बताया कि विलाई आर हाईली सप्लाइड ब्लड कैपिलरीज एंड लैक्टियस, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। तो इसका सी क्वेश्चन आंसर सही है, इसका ए सही है। स्टमक में एसिडिक मीडियम में डाइजेशन हुआ। विलाई का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। अब इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेट्रोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये तो करेक्ट ही है कि जितने हेट्रोट्रॉफ्स हैं अपना भोजन नहीं बनाते, बल्कि अपना भोजन दूसरे ऑटोट्रॉफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेते हैं। डायरेक्टली का मतलब ये है कि जो हर्बीवोरस हैं वो डायरेक्टली घास पात को खाएंगे, लेकिन जो लायन है वो डियर को खाएगा, हर्बीवोरस को। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जो है हर्बीवोरस, वो जो है ऑटोट्रॉफ्स को से ही एनर्जी लेंगे, भोजन लेंगे। तो हेट्रोट्रॉफ्स आर अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड, इसीलिए तो दूसरे को खा के लेते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी गलत है। हेट्रोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, नो। हेट्रोट्रॉफ्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, नो। ऑटोट्रॉफ्स कैन डू ऑल दिस थ्री वर्क बट द हेट्रोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। करेक्ट आंसर ए है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट इन एलिमेंट्री कैनाल? आप देख सकते हैं माउथ, स्टमक। माउथ के पास तो इसोफेगस, माउथ के पास बाद तो इसोफेगस आएगा, फेरिंग्स के बाद माउथ हो, इसोफेगस, स्टमक। स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। माउथ, स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो माउथ के बाद ही इसोफेगस है, स्टमक तो बाद में आएगा। अब यहाँ देखिए माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, माउथ हो गया,
तभी ओइसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, तब लार्ज इंटेस्टाइन का नंबर आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही होता है माउथ। माउथ से शुरू हुआ, आप माउथ देख सकते हैं, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द सीक्वेंस। तो माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इफ salivary amylase is lacking in saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? तो salivary amylase क्या है? टाइलिन है, डाइजेस्ट स्टार्च इनटू मैल्टोज। तो किसका डाइजेशन नहीं होगा? स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा, प्रोटीन का डाइजेशन तो वहाँ होता नहीं, फैट का भी नहीं होता, तो वहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा। तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर इट विल नॉट एक्सप्रेस, मीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द माउथ विल बी अफेक्टेड? तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, यह काम नहीं होगा अगर सैलिवरी एमाइलेज नहीं है सलाइवा में। तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। अब इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनर लाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो काफ़ी वहाँ पे पीएच बहुत कम है, अबाउट 1.8 to 2.8 के लगभग पीएच है, तो वो नुकसान कर सकता है इनर लाइनिंग को। तो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या निकलता है? म्यूकस। म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय म्यूकस ग्लैंड टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन हियर। तो यहाँ पे स्टमक को प्रोटेक्ट करने, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सिक्रेट होगा। अब विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर? कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट जो है बाइल जूस को रिसीव करता है? तो आप देख सकते हैं कि बाइल जूस को कौन करता है? डिओडेनम। यहाँ डिओडेनम है, यहाँ से बाइल जूस आया हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से, तो डिओडेनम रिसीव करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? डिओडेनम, द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वही रिसीव करेगा। सातवां का बी सही है। फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वेर एडेड टू द राइस वाटर। राइस को वाटर में घोल दिया गया है, उसके सोल्यूशन में आयोडीन डाला गया, तो आयोडीन डाला गया तो वह ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है। आप जानते हैं वह फूड मटेरियल जो आयोडीन की उपस्थिति में ब्लू ब्लैक कलर दे, दैट इज द स्टार्च। वह क्या होगा? स्टार्च होगा। ये स्टार्च का टेस्ट है। तो वह जो फूड मटेरियल है निश्चित रूप से उसमें क्या है? स्टार्च है, दैट्स वाई इट इज गिविंग ब्लू कलर। ज़्यादा हो गया आयोडीन तो ब्लू ब्लैक कलर देगा। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? फूड का फाइनल डाइजेशन इन स्मॉल, बताया ना, इन स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। चूज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या है? तो पैंक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट। नो, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज तो फैट को डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, नो, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाई फैट एंड डाइजेस्ट फैट। चूज द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। ये सही है। तो जो क्या है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाई फैट एंड डाइजेस्ट द फैट। ओके, हालांकि इमल्सिफिकेशन किससे होता है? बाइल जूस से होता है, लेकिन लाइपेज उस पे एक्ट करके उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू डिओडेनम एंड कैरीज। हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू डिओडेनम एंड कैरीज बाइल जूस एज वेल एज पैंक्रियाटिक जूस। क्योंकि हिपेटोपैंक्रियाटिक, देखिए नाम, हिपेटो माने लीवर से और पैंक्रियाटिक माने पैंक्रियास से, तो बाइल जूस लीवर से, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से आएगा। द ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड एलिमेंट्री कैनाल, इसमें से एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी ग्लैंड नहीं पाए? तो पैंक्रियास तो है, लीवर भी है, सैलिवरी ग्लैंड भी है, एसोसिएटेड है। सैलिवरी ग्लैंड बकल कैविटी में, पैंक्रियास लीवर एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन एड्रीनल ग्लैंड यह किडनी पर है। इट इज द इंडोक्राइन ग्लैंड, यह किडनी के ऊपर है, तो यह इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। तो 12 का बी आपका ऑप्शन सही है। मैच द कॉलम, 2 कॉलम एंड सेलेक्ट द राइट अमंग द ऑप्शन गिवन। इसमें से दोनों कॉलम है, सेलेक्ट करके राइट ऑप्शन बताइए। डिओडेनम, डिओडेनम क्या है? यू शेप्ड स्ट्रक्चर। देख लीजिए आप यहाँ एकदम बिल्कुल यू शेप्ड स्ट्रक्चर है डिओडेनम। ये देख लीजिए यू शेप्ड स्ट्रक्चर, डिओडेनम यू शेप्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिओडेनम यू शेप्ड स्ट्रक्चर, तो ए का थर्ड आ जाएगा, ध्यान देते रहिए, ए का थर्ड। अब इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस क्या है? इपीग्लॉटिस इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप विच गार्ड द ग्लॉटिस, मैंने बोला था, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए ग्लॉटिस, ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ट्रैकिया का, तो ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप है, फोर्थ देख लीजिए सी का। और यह जो है यहाँ पे यू शेप्ड स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टमक, यह पार्ट यहाँ का इधर आ गया है, तो उसे कंफ्यूज नहीं होंगे। सीकम, सीकम क्या है? सीकम इज द
स्मॉल ब्लाइंड सैक, सीकम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से मिलता है तो उसी को सीकम कह देते हैं। तो आपका कौन सा आंसर सही है? सी वाला, ए का थर्ड डिओडनम यू शेप्ड स्ट्रक्चर, और बी का फर्स्ट, बी का एपिग्लॉटिस ए कार्टिलेजनस फ्लैप, देन सी का फोर्थ, सी का है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, एंड द डी सीकम, सीकम इज द ब्लाइंड स्मॉल ब्लाइंड सैक। तो आपका सी सही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बचा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इट इज एसोसिएटेड वेरियस फंक्शन, चूज इन करेक्ट, चूज विच वन इज द करेक्ट, नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। लीवर मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्ब, यस, इज कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। फॉर्मेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट, यस, बाइल जो सिक्रीट करता है वो एमल्सिफाई करता है फैट को, तो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल, बाइल भी बनाता है। और डी सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, नो, गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये पाइलोरिक म्यूकोसा से निकलता है। यह लीवर का काम नहीं है, डी इसका आंसर। मार्क द राइट स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको बताया हमने डी सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन तो पाइलोरिक म्यूकोसा से निकलता है बच्चों। मार्क द स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन secreted by intestine, no, ट्रिप्सिनोजन secreted by pancreas, इंटेरोकाइनेज secreted by pancreas, no, यह तो जो है ड्यूडनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है। बाइल कंटेंट ट्रिप्सिन, नो, पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होगा ट्रिप्सिनोजन के रूप में। तो ट्रिप्सिनोजन इज इनएक्टिव, यस, ट्रिप्सिनोजन इज इनएक्टिव एंड बिकम्स एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेरोकाइनेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ट्रिप्सिनोजन इज इनएक्टिव, ये सही है। इन विच मीडियम डाइजेशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आपने देखा कि स्टमक में एसिडिक मीडियम में था, लेकिन ड्यूोडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन में किस में होगा? एल्केलाइन मीडियम में, क्योंकि वहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट है। बाइल जूस में भी आया है, पैंक्रियाटिक जूस में। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, तो एमाइनो एसिड का बना होता है। जितने भी प्रोटीन है आफ्टर डाइजेशन गेट कन्वर्ट एमाइनो एसिड, तो एमाइनो एसिड के बने हैं। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन रहे आपके, इसको देख लीजिएगा। और आप लेक्चर वीडियो के उसमें लिंक में जा कर के पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन प्रोसेस सारा आप देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।